जैसे ही मैंने उनको कहा कि मुझे स्टेरॉइड्स लेने हैं एंड से पहले ही 25 kgs लूज कर लिए थे, another 15 kgs to go. Yeah. What has been the amazing, huh? hardest part? Being a fat kid, my attachment with food is like 1 to 100 में 100 scale पे. So, were you a fat kid? I'm sorry if I'm using the word fat. I was not fat, मैं एक मोटा भसूल्डा नौजवान था और मेरी हर जगह बेइज्जती होती थी. Then I decided कि भाई अब तो बॉडी ही बनानी पड़ेगी, अब कुछ नहीं हो सकता. जब बॉडी बना ली तब समझ आया कि पर्सनालिटी तो भी. Okay, so let's talk about ICN and how this guy has won it like 5 times. ICN stands for I Compete Natural. It is the biggest federation in the world. Protein bread, is this a good substitute for, you know, the normal bread that we eat? If you buy it from outside, it's probably not protein bread. Scam है वो. हमारा जो इंडियन डाइट है, हमें रोटियां तोड़ना सिखाते हैं, ये नहीं बताते कि सब्जियों की कितनी इंपॉर्टेंस है. So don't eat for taste. Just eat for that satiety which would be given to you by vegetables, and rotis for fuel and for energy. As a woman, what is body positivity? Like being happy where you are right now with your body. So we have very special guest today with us, Ekansh, who is an entrepreneur, a fitness coach, a nutritionist, and Navya's brother. Actually, just to clarify, मैंने नहीं organize कराया है podcast. नव्या This is Navya. ने मुझे यहाँ पे actually उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. So And Navya की beautiful introduction साबी देगी. So Navya, I think I started following Navya around maybe 6 months ago, and I've been really seeing her progressing. She's a photographer, a cinematographer also, and now she's a budding fitness influencer. I have been following her journey. It's been beautiful. I think she's actually been influenced by उनके घर का influencer, and it's been beautiful seeing her grow. Sabi missed out on one thing. She's also a model, Yes, guys. sorry. See, she's doing so much at the age of 20. 20, she's That 20. Sabi missed out. कि अच्छा एक चीज रह गई. नहीं नहीं, we don't want to miss out on anything. but you guys are also doing amazing. I would Yes. like to mention this, that probably we're going to be the 4th or 5th podcast on this channel, but you guys should go very far because the concept that you have in brain and आपकी खुद की life इतनी inspirational है कि now I am going to invite you back on my channel. We just scored a podcast for ourselves. But thank you for such a cute introduction. And we are very, very happy that we have somebody from the fitness world today with us, because we are also, I think we would also like to call ourselves a little bit, teeny bit of fitness Maybe not enthusiast. Enthusiast is the right Yes. word, not influencers. Like for not- sure, but enthusiast. Not influencers at all, but yes, we But like try I've our seen your tiny- stories with abs popping out. I have seen it. ये वो modest वाले बंदे हैं. Yeah. नहीं we try, like we definitely very much. हमारे घर में सब कोई healthy eating का कीड़ा है, बहुत ज़्यादा कीड़ा है. Even our parents have really like turned into like कि हम salads ही खाते हैं. कोई रोटी तो आजकल हमारे घर I think barely बनती है, मतलब बनती है तो multigrain बनती There's है. another thing that I want to ask you guys. Yeah, protein bread, is this a good substitute for, you know, the normal bread that we eat? Is it a good thing? You Because just started we have it out, incorporated it in our diet. So the short answer is no. No? Okay. Short answer. But Long but answer. it depends, no, on the case. Number one, if you buy it from outside, it's probably not protein bread. Scam है वो. अगर आप उसे घर पे बनाते हो तो खा सकते हो. And no, because That's why? most of the things I think. Yeah, and the second reason, the core reason of me saying no is, why are you craving for bread? And why is your brain asking for it? You should first ask yourself that. कि आपको actually में नमक की craving है या gluten की craving है या किस चीज़ की craving हो रही है जिसकी वजह से आपका दिमाग bread मांग रहा है, because bread is very hyper palatable. मतलब कि आप आसानी से उसे बहुत ज़्यादा खा सकते हो. So if you have a small appetite, then yes. But if like for people like me and Navya, no. Okay. So from that question, could you I'm tell very us sad. a little? Because I eat protein Do you bread. have a big appetite? I have a huge, big is an understatement. या I have वैसे a श्रेया huge- बहुत खाना खाती है हाँ, बहुत यार. खाना खाती हूँ. Like I have 5 meals in a day. Yeah, like What are your fitness secrets? There's no secret. अच्छा sober DJs भी होते हैं. There's no secret. हाँ यार Sober मैं भी ये DJs सोच रही थी पता है कि ये डॉक्टर है and she's like a fitness हाँ enthusiast. होते हैं यार. But how do you play? How do you get that high?
Like How do I तो get हाई there? कैसे आता है फिर वो डीजे से? हाँ, पहले तो वही सारे real dopamine, the music, like once you start enjoying the music, no. Then you don't need anything, any substance. so Wow. do That's what I've you seen. don't do anything before playing your set? Yeah, bro, I'll be very honest. मैं तो ये तो दारू भी नहीं पीती मैं दारू भी यार, नहीं पीती यार. Wow, यार. मैं I'm off. उनका नाम ही झूठा है. हाँ मेरा नाम ही झूठा है. मैं I don't drink alcohol. I do भाई आप drink क्या it. कर No, रहे हो? no, अबे आप sometimes you एंड्री do. ह्यूबरमैन के पास जाओ, थोड़ा पॉडकास्ट दे के पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर करो, नहीं, but सारे सही डीजेस को, सारे नहीं, डॉक्टर्स को. मतलब I actually never made that association कि हाँ मैं दारू पीऊंगी और फिर स्टेज पे जाऊंगी. I never made that association only. मतलब मेरे को Plus, hence initially the running joke. She already has so much like I have a energy lot of and like. energy and probably that's why I'm doing so many things. Yeah. That's why we are doing so many things Yeah. because Yeah. like there's a lot of ऐसे energy. energy है बस, पता नहीं कहाँ से आती है, बस आ जाती है. ये होता है real love for the craft. या Like she एंड only cares प्लीज about प्रोटीन what ब्रेड she's खा लो आप playing. फिर. आप खा लो प्रोटीन ब्रेड. क्या एक ही चीज है? मैं अब थैंक यू मैं खा लूँ ना. मैं सिर्फ 2 खाती हूँ स्लाइसेस लाइक एवरी डे. आई मेक अ गुड अच्छा एज अ सैंडविच. सो दैट्स व्हाट आई सेड, इट डिपेंड्स आप कितना how खा you रहे हो. consume it. अगर आप सेटिस्फाई हो 2 में, क्योंकि मैं 6 से कम में नहीं रुकूंगा. नहीं 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 हाँ, दो, like सिर्फ 2. हाँ, Fair. मतलब हम Self control दोनों वाली बात आ जाती है, I think. या like were you a मतलब, fat kid? नो. टच वुड नेवर. Then you can eat anything. Like, Like I there think was a आपका time- normal appetite ही होगा फिर. हाँ, there was a time when I developed when I was 10 kgs heavier. That's because I developed PCOS and I had like अच्छा हाँ, मैंने met hypothyroidism. you, just met you. Yeah, हाँ, I had like hypothyroidism, and at that time I had like severe vitamin D deficiency. Probably that's why I got to know that I have thyroid, underlying disease. So then actually that's how my fitness journey, if I can call it a journey. So you that's how reversed it? My PCOS is under control. My thyroid is absolutely under control. Medications And, थोड़ा बहुत, but हाँ मतलब But yeah, I think. mostly see PCOS is a condition that can never be treated. Yeah, I like, think as वो a आती doctor. जाती रहती है probably. हाँ, but the symptoms can be controlled if you follow a good diet. Yeah, it's a lifestyle disease at the end of the Yeah. day. So you fix your If lifestyle, you work so you out, fix your. and I think I work out ऐसे 3 times in a week. इससे ज़्यादा तो मेरा allow नहीं करता. मैं तो करती ही नहीं, कुछ भी नहीं करती, मैं जिम नहीं जाती एंड नहीं, थ्राइस अ वीक पे आ गई. Thrice a week तो मैं नहीं यार, हम 100%. जाते हैं यार, हम we do जाते हैं workout, बिल्कुल. I we will do not अरे, lie. थ्राइस अ वीक इज अ एक्टिव लाइफस्टाइल. मैं खुद ही 5 बार ही जाता हूँ. हाँ मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 4-5 बार जाना चाहिए. मेरी जो लाइफ है But जैसी है 3 मुझे times allow तो we नहीं make करती sure मुझे that we Even do 2 go. times enough है if you are stimulating all your muscles. I So think yeah. we go. And उसके अलावा भी she said she plays badminton on a Sunday. So they are. हाँ ये सब तो मैं Sunday morning for me is like पक्का one new thing, like either badminton or we go for rock climbing या कुछ something we go for, like my and my Yeah, we friends. try to keep our lifestyle very yeah. active. या in तो आपने whatever- इंट्रोस्पेक्शन नहीं करी है या आप मॉडेस्ट हो रहे हो, बट यू गाइस आर वेरी एक्टिव. वेरी गुड. I think bro we are very active. हम Maybe- बस ऐसे ही थोड़े से Thankfully maybe we're downplay lucky कर also that people around us Everybody is a are little funky also about that. active, तो हमें लगता है कि ये normal है. मतलब हमारे आने वाला आगे वंशज बढ़िया होने वाला इनके जैसा. हाँ. ठीक है ना निकी? बट नहीं, हमारे घर में भी इसलिए मेरे लिए इजी हो गया बिकॉज भैया ने सबको इतना इन्फ्लुएंस कर ही दिया था कि बहुत ही Right, I हेल्दी think- एनवायरनमेंट बन गया था. Yeah. तो And I think it's like for me also, I also got PCOD and I also have thyroid. तो वो होता है ना कि once you start getting disease, you realize कि भाई something needs to something change. is wrong and something needs to change and it needs to change And for good. Yeah, and then it becomes a routine and you get into it and now it feels very normal. Now it feels Yeah, okay. now मतलब हम ऐसे सनक नहीं रखते किसी चीज का. We don't obsess over anything, but we do try our best to. Yeah. Anyway, enough about us, Yes, guys. You please, guys like, are the बहुत best. हो गया. हमारा podcast करने लग गए हैं भाई. हमारा podcast शुरू हो गया. Question. Okay, Vikash, let's talk about your Your fitness fitness journey and then we'll talk about yours. Yeah. Okay. So, were you a fat kid? I'm sorry if I'm using the word fat, but were you Fat तो कर सकते हो. कर सकते हैं ना गाइस? हाँ, रोने तो नहीं लग जाओगे. फैट बोल दिया मैंने, रोना मत. हाँ नहीं लोग रोने जाते हैं फैट नहीं सॉरी. हाँ, यही हाँ यार सॉरी, मैं बोलूंगी फैट किड, कोई बात नहीं. हो तो Were you a और fat हो kid? तो इन्फ्लुएंस फॉलो कर लेना और इन्फ्लुएंस हो जाना. I was not fat. मैं एक मोटा भसूंडा नौजवान था. यार आपने 2-3 डेज फॉलो किया ना, इसलिए आपको पता नहीं है. हाँ यार, हाँ. इसकी बैकग्राउंड स्टोरी. मैं बैन होता रहता हूँ इंस्टाग्राम से. हाँ. तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं. सो चिल है, बोलते रहो जो मर्जी बोलो. ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है. वी जस्ट वांट टू बी वेरी रियल एंड ट्रांसपेरेंट Yeah. हियर. सो एंड यू वांट द रियल स्टोरी की मतलब एक्चुअल इंस्पिरेशन क्या थी? बुली हुए थे, लड़की नहीं मिल रही थी, लड़की ने दिल तोड़ दिया था, क्या हुआ था कि मतलब यू वर लाइक यार जिस उम्र में मैं था तब लड़की ढूंढने वाले मेरे हार्मोन्स भी नहीं थे ऐसे ही. मतलब सो आई वाज जस्ट बुलीड बैडली. So bullied by my teachers, bullied by my how friends. old were you when So I was 11 years old when it all started, and 15 का जब मैं हुआ तब मुझे realize हुआ that I need to do something about it. So मेरे खुद के relatives and secretly मेरे खुद के मतलब अपने भी जो भी हैं जितने मेरे आसपास हैं, जानबूझ के नहीं intentionally but unintentionally they hurt you. Like for example मैं अपना example लूँ नव्या के साथ,
तो मैं भी अनइंटेंशनली नव्या को बुली करता था, मतलब अनअवेयर होके, क्योंकि मैं एक बड़ा भाई हूँ और अगर मेरी बहन ओबीस है तो या तो मैं उसकी हेल्प करना चाहूंगा और या फिर मैं उसे मजाक उड़ा दूंगा विदाउट रियलाइजिंग हाउ वुड शी फील. How much it affects your हाँ, बट देन आई माई सेल्फ फेस्ड इट, तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि वो साइकोलॉजी पे उसके क्या असर मारेगा. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दी ऑपोजिट स्टफ लाइक एम्पावरिंग देम. बट मेरे केस में ये था कि आई स्टार्टेड गेटिंग बुलीड, तो मुझे बस वैलिडेशन चाहिए थी और इतनी ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए थी, मेरा इतना डेफिसिट हो गया था कि मैं स्कूल में सबसे ज़्यादा वॉनबी बंदा जाना जाता था और मेरी हर जगह बेइज्जती होती थी. एंड इसीलिए फिर मैंने और ज़्यादा वैलिडेशन लेने के लिए ड्रामेटिक्स सोसाइटी अपनी जो है वो ज्वाइन करी एंड देन उसमें मैंने एक्सेल किया स्कूल में, तो वहाँ से थोड़ी वैलिडेशन मुझे मिली. बट देन जब मैं कॉलेज में आया फिर से वैलिडेशन डेफिसिट हो गया. देन आई डिसाइडेड कि भाई अब तो बॉडी ही बनानी पड़ेगी, अब कुछ नहीं हो सकता. जब बॉडी वॉडी बना ली तब समझ आया कि पर्सनैलिटी तो अभी भी नहीं है. I So just real. love how real he is. Yay. Then I finally Then you were worked like, on "अब my work on conversation personality and all the development other का time हो parameters that people want in a human being. तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये कर ये लेता भी होता है. तो बट ड्रेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, वरना मैं फिर मोटा ही रहता अगर मैं बाकी चीज़ों पे काम कर लेता. So you don't need a good body. Best of both worlds now. Yeah. Yeah, exactly. And Navya, what about you? He must have been a great influence in your life, of course. Of course, but similarly, भैया ने I think भैया was in 12th जब उनकी हो गई थी ट्रांसफॉर्मेशन, but I am 7 years younger than him, तो मैं भी गोल सी बच्ची थी, तो हमारे घर में सब गोल ही थे बचपन में. बट हाँ, अनइंटेंशनली आई थिंक करा है भैया ने, बट अगर वो नहीं होता तो आई डोंट थिंक उसके बाद मैं कंटिन्यू करती. बट आई एम वर्किंग आउट सिंस आई वाज इन 7th 8th ऐसे कभी कभी. Which takes me to the next question. So I believe, and I might be wrong, do you guys think that strength training should be introduced in our school? जो हम physical education वाला जो period होता था, मुझे तो वो Definitely. वाहियात और बकवास लगता था. मैं तो हमेशा स्किप कर देती थी. हाँ, मेरे लगता ही को था interesting. महीने में 4 बार पीरियड्स आते थे क्योंकि मेरा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था. बट आई थिंक यस. हाँ Seriously? मैं बैठ जाती थी नहीं, कि वो- मेरे अरे को- कि अगर उसमें अच्छा जोक मार. नहीं अगर ऐसा बोल दो ना कि मैं पीरियड्स अरे तो फिर ना बोल देते कि हाँ बैठ जाओ या आप कहीं और chill करने चले जाओ. अच्छा You don't have to यार, मुझे play. नहीं पता ना यार, मैं कैसे रिलेट करूंगा. Sorry. For people who don't know, it's a joke. I didn't have girlfriends. Yeah. So do you think that strength training should be included in schools? Absolutely. मैंने कभी नहीं सोचा, मैं आज पहली बार ही सोच रहा हूँ, बट इट वुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल कि अगर मैं वहाँ स्पोर्ट्स रूम में जाके बास्केटबॉल ना उछालता रहता या चीज़ें ना तोड़ता. मुझे हमारी फॉर्म, हमारा posture. Yeah, because आदत ही हो जाती है. like at that age either we are creative or destructive, so because we want to do something. तो अगर हमें सही इक्विपमेंट मिलेंगे, एंड जैसे अभी नव्या स्कूल से लाइक मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, सो लेट हर टेक दिस नहीं फॉरवर्ड. मैं इसी बात पे ऐड करी थी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल वालों को ना टाइम भी देना चाहिए अलग से, कि दे शुड नॉट लोड यू विद थिंग्स. क्योंकि Yeah, मुझे याद true, है कि बीइंग इन अ हाउस जहाँ पे भैया वर्कआउट करते रहते हैं, मेरे लिए बहुत मेंटली चैलेंजिंग हो जाता था कि मैं स्कूल के अलावा टाइम निकालूं कुछ और करने का. तो घर पे आके मुझसे पूछता था आज किया, तो मेरे को झूठ बोलना पड़ता था हाँ कर लिया. वाओ, दिस इज सच एन अमेजिंग आइडिया, क्योंकि एक वो उस ड्यूरेशन होती है उस स्लॉट की 30 to 45 मिनट्स, एंड उतना ही वर्कआउट चाहिए उस बच्चे को. And the reason why I'm talking to you is because I just, since I have been following you on Instagram, I have been seeing that you've been speaking at various institutes. So I think since I can't go out and give them this idea, Maybe you can. schools should be Yeah. on like Maybe you can. know, The next time you go to a school or a college, maybe you can pitch them reach this out idea. because you now have actually the influence to actually be able to put that change. Yeah, and in their subconscious, the students, it would actually get instilled कि ये एक नॉर्मल चीज़ है. एनर्जी भी तो होती है ना उस टाइम पे. You हाँ. can actually do it. एंड दे विल लेस लाइकली गेट इंजर्ड, क्योंकि जितना यंग होते हैं उतना ज़्यादा बोन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, recovery एंड rate is also प्रोप्रियोसेप्टिव higher. एबिलिटी भी ज़्यादा होती है. सो व्हेन दे एंटर इनटू द जिम, उनके साथ स्कैम्स होने के चांसेस भी सारे रिड्यूस हो जाएंगे, जो मेरे साथ बहुत हुए, बिकॉज आई डिड नॉट नो एनीथिंग. सो एक अगर पीटी टीचर को बेसिक नॉलेज होगी, लाइक एक सर्टिफिकेशन होगी उसके, वाओ मैन, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइडिया यार है. मतलब आगे. सही में. और अगर ये भी ना हो पाए इतना सब, तो आई थिंक उनको इतना बताना चाहिए घर जाके अपने लिए आधा घंटा निकाल लो. ट्यूशन में 4 घंटे बैठने की कोई जरूरत नहीं होती है स्कूल Yeah, में. ये तो- जो तुम्हें yeah, कहते हैं कि वो इतनी तो पढ़ाई करनी है. एजुकेशन सिस्टम का कलेक्टिव हमारा प्रॉब्लम है. education हाँ. system ही बहुत ज़्यादा बट मैं मोटी भी problematic इसीलिए है. हुई थी. I am sure. मतलब ऑफ कोर्स मेरे और भी रीजंस थे, ठीक है, बचपन से जो भी व्हाटएवर, कि बहुत अटैचमेंट है खाने से. बट ये मेजर रीजन था मेरा कि मैं करना हमेशा चाहती थी वर्कआउट, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट हु वाज आल्सो एकेडमिकली गुड, तो अगर उसमें मैं खराब हो जाती थी तो वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था. तो डेफिनेटली ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा नहीं प्रॉब्लम. बिल्कुल. एंड जैसे मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इश्यूज थे स्कूल में, तो ना मैं बास्केटबॉल खेल पाता था क्योंकि उसमें भी रन करना है, तो पूरी बॉडी हिल रही है, तो मुझे कॉन्शियस हो रहा है. फुटबॉल भी नहीं खेल पाता था. Any movement. इवेंचुअली आई डिड नॉट लर्न एनी स्पोर्ट.
Yeah, I think yeah. तो अगर मेरे पास कम से कम वो इक्विपमेंट होते तो मैं स्कूल से ही बॉडी बिल्डर बन के निकलता। अच्छा एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे तो पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है. ऑल्सो दैट हमारा जो इंडियन डाइट है सबको पता है वो कितना खराब है. हमें रोटियां तोड़ना सिखाते हैं, ये नहीं बताते कि सब्जियों की कितनी इंपॉर्टेंस है. आई रियलाइज दैट व्हेन आई वाज अ फुल फ्लेजेड वुमन एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट आई एम ईटिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब मैं इतनी रोटियां क्यों खा रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा. सो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस दैट इन स्कूल्स, प्रोबब्ली टेल एवरीबॉडी दैट हमारी डाइट में 60 to 70% या फिर घरों में ही protein कैसे होना like because चाहिए. it begins from like diet only, like if I'm hope I'm not wrong, it's 80% Yeah, so diet, yeah, right? school cannot do anything in this. Parents have to do this. Yeah, वही. Because your children would only mimic what you do. तो अगर उनको अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजें नॉस्टैल्जिक मेमोरी पे ही कर रहे हैं. जो भी हमें खाने में पसंद है दैट टेक्स अस बैक Back इन to the टाइम childhood, कि हमारे yeah, मम्मी for पापा हमें sure. हक करते थे, इस टाइम पे खिलाते थे, वो खिलाते थे. तो रोटियां भी वैसे ही है. अब आप यूके के बंदे को बोलो रोटी वगैरह, वाह फनी थिंग. तो अभी हमारे हैबिट्स हमारे माँ बाप ने ही सही करी है या खराब करी है जो भी है. बट टू एक्चुअली टेल द ऑडियंस एंड एजुकेट देम, अगर आप अपनी प्लेट में एक्चुअली में वेजिटेबल कंटेंट बढ़ा दोगे, सो वी हैव रिसर्च दैट प्रूव्स दिस कि आप ज़्यादा लंबा जियोगे. बिकॉज द फाइबर कंटेंट इफ इट इंक्रीजेज इट कैन एक्चुअली डिले कैंसर और एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्जेविटी. सो रोटियां ऐसा नहीं है कि बुरी हैं. नहीं. You don't have to demonize anything. It's just that Everything in the correct portion so size is no, it's just that गाड़ी में उतना पेट्रोल डालो जितना निकाल रहे हो. If you're an athlete, you need more rotis. If you're a sedentary person, you probably don't need any rotis. So don't eat for taste. Just eat for that satiety which would be given to you by vegetables, and rotis for fuel and for energy. Coming to Navya, how is it being in front of the camera and behind the camera? Have you ever done a fitness shoot for your yeah. brother? एक्चुअली फनी स्टोरी. हमने अभी यही बात कर रहे थे कि सबसे पहला शूट मैंने लाइफ में तभी किया था जब भैया ने कैमरा लिया था फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही वाज 18. देन आई हेल्ड द कैमरा और मेरे को पता भी नहीं होता था ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता But है. you were just बट ही यूज्ड टू टेल मी कि यार मेरा शूट कर दे. तो मैंने वो तो सीरियसली लिया ही नहीं कि यार नहीं मुझे आता नहीं है, खराब हो जाएगा. तो हम कर लेते थे. एंड दैट एक्चुअली स्टार्टेड, इट वेंट ऑन फॉर लाइक 2-3 years. देन आई वाज इन 9th 10th 11th 10th आई थिंक व्हेन आई टुक दिस सीरियसली कि वो यार मुझे आता है. तब मैंने सीखा कि बेसिक्स होते क्या है कैमरा के. उससे पहले मैं ऐसे ही you were just shooting. यार. Nice. एंड मैं मतलब यही मेरा मोटो है लाइफ का कि कुछ भी करने से पहले मैं इतना नहीं सोचती कि व्हाट कैन गो Fair, रॉन्ग. right. I think That's that's the how- best way that's to do the- things because yeah. आधे लोग ना सोचते ही रह सोचते जाते ही रह हैं. जाते हैं. मतलब आई थिंक यू हैव द सेम आइडियोलॉजी ऑल्सो. बट वही मतलब कुछ भी तुम इतना सोचोगे कि अभी विल गेट रेडी फॉर इट. No. उसके बाद नहीं होता है. I think Savi and I, we first jump into the situation Then we think. and then we figure out the logistics कि अब हमने यहाँ पे क्योंकि पहुँच तो फिर गए में ये हैं. भी होता है कि अब तो आ ही गए, अब तो करना But पड़ेगा. that's how you're No option. supposed to do it. Yeah, that's how we are designed. Yeah, I think So that's I started Survival. freelancing and that's how I learned proper filmmaking and photography. Yeah. That's nice. So did you go to a school for that, for filming? No, you Now haven't. she's Now good. she, Now you're yeah, doing- that's yeah, what so I please was. tell us about So it. I started freelancing when I was in 11th. Oh wow. Yeah. यार ये लड़की बहुत आगे Yeah, चल रही है ये यार, 20 बहुत ही साल की ज़्यादा. बच्ची. ये 20 साल की बच्ची बच्ची है. नहीं है. I agree, मुझे इंस्पायर करती है अभी. नहीं, ये इंस्पिरेशनल है. मतलब 20 साल पे गाइस मैं और पता नहीं क्या कर मेरे रही को याद भी नहीं है. थी. मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और वो भी अच्छे से नहीं कर रही थी. जैसे लेट्स बी रियल, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर रही नहीं बट उसका बहुत बड़ा रोल भैया का ही है इसमें. मैं तो इन्वेस्टमेंट करी है, मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खा रहा हूँ इससे. रोज इंस्पायर होता कि हूँ. ही टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू नो मोनेटाइज क्यों नहीं करनी अपनी स्किल्स ये वो. तो आई थॉट कि हाँ करते करते सीख लेते हैं. सो आई डिड अ लॉट ऑफ फ्री शूट्स, डोंट गेट मी रॉन्ग. आई shot a lot of free things for everybody and that's how I learned. but ठीक है, then I started earning. बट 12th के बाद आई थॉट कि मैं जाऊंगी कहीं सीखने ढंग से, लाइक सिम्बायोसिस इन पुणे कर देना इसको बीप. बट उसमें मतलब the charges were so high and They are. they're like it's like 4 lakh per annum. and then I asked a few people कि क्या कराते हैं and one person told me कि first year में सिर्फ phone photography होती है. and I was like what? तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो मेरे को आता ही है. तो then I decided कि I'll just do a 1-year diploma course just now so where- that wait let me complete that. इसलिए नहीं कि मुझे photography सीखनी है, इसलिए just because I know how to talk to a high-ticket client with all the terms and everything. You don't need to go to a school to learn photography. I think at Navya all. is a perfect example of how
a street smart woman can achieve everything without the fucking degrees. Oh, Okay, wow. जो हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, इसके लिए ये डिग्री चाहिए, उसके नहीं लिए वो चाहिए। डिग्री चाहिए, Degrees तो आजकल चाहिए ही नहीं guys नहीं वैसे। चाहिए। इट्स वेरी फनी कि नव्या ने पूरी फोटोग्राफी सीख ली हाँ, और उसके बाद जस्ट टू गो थ्रू द थ्योरी कि भाई मैं कर क्या रही हूँ मुझे पता हो, इसलिए वो अब Like, सीख जा रही है। Very nice way to go about it. मतलब honestly. I knew photography. I just want to become an educated photographer. हाँ, नहीं, बस see, मुझे- that's the right way. I think that's the right way of going about things. कि चलो अब मुझे practical पूरा आ गया, but I want to be an educated. You know, Exactly. Like all my decisions should come from a place of, oh, I know this. This is my education is right. Yeah. So I think that's like a So probably the right I would way. like to add to this. There are 3 takeaways that I personally take from Navya's journey, and there is a reason why I say that she inspires me and everyone in my family actually. कि भाई पहली बात, अगर आपने कोई चीज़ सीख लिया है, so that does not give you a reason to act so superior कि अब मैं इसके बारे में पढ़ाई लिखाई नहीं करता है करती, तो बहुत चौड़ में लोग बहुत बड़े हो के कहते हैं ना हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो हमें आता भी नहीं, हमने कभी ट्राई भी नहीं किया, so you're a loser. अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है, you might be wrong. It's like you being dogmatic and narcissist कि भाई मैंने सीख लिया। दूसरी चीज़ ये, like you said, ये भी अपने आप को चीज़ों में फेंक देती है, and after that she actually survives it because we are meant to Yeah, be. we're meant to survive. We're humans. Yeah. We will. So in a way we are anchoring ourselves again कि अगर लाइफ में कुछ गलत हो जाए तो हमें survive करना आता है. So that's a daily practice for her. So like on her prep right now, sleep is very important, but she hardly sleeps because she has to go on shoot, she has to go to the college, then she has to go to her diploma, dance class, swimming, cardio. I don't know how many things. Oh, also yes, Navya is a great dancer by the way. Forgot Yeah. to mention that. Really love it. I love the dance reels that you यार put. so you do यार मेरे को ना कोई चाहिए, मैं भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ, ठीक है, तो प्लीज क्या can we do like a dance reel together? I've been trying to find girls who will do a dance reel with me, man. So guys ये भी आने वाला है मेरे Instagram पे, please can we do a dance, मतलब मैं अच्छा डांस करती हूँ, मैं खुद बता सकती नहीं हूँ। कोई बात नहीं यार। हाँ मतलब मुझे नहीं पता आप किस नहीं भी level करते पे हो, हो। आपको सिखा दूंगी। नहीं मैं करती हूँ यार, मैं अच्छा करती हूँ, हम एक रील बनाने वाले हैं। For And sure, I just got yeah, and totally derailed. तीसरा जो टेक अवे है मेरा वो ये है that she loves her craft so much that she can probably, I am saying this on camera, it's not that she doesn't know her worth. जब ये चार्ज करने पे आती है तो ये नेगोशिएट भी नहीं करती, बट अगर इसे वाइब आ जाए किसी क्लाइंट के साथ, सो ये मेरी भी नहीं सुनती अगर मैं इसे कहूँ कि भाई तू पागल है क्या इस प्राइस में, या फिर तू फ्री में कर रही है. सो शी इज लाइक आई वांट टू डू दिस, मेरे दिल से आ रहा है मैं करूंगी. सो शी फॉलोज हर हार्ट बिफोर हर ब्रेन. ये बहुत अच्छी Very क्वालिटी rare, है. very nice. You can't put money, you can't put a price on everything. Like there are a lot of times when people tell me कि oh why are you doing this collaboration for such less money, and I'm like bro, not everything is about money. Yeah. Please let me build a relationship with that person because मुझे बहुत अच्छी vibe आ रही है उससे. Yeah, because sometimes मतलब इतना पैसा लेके तुम अकेले भी क्या ही करोगे ना. Sometimes you want to create a community, you want to vibe with Of people. course, very hard. 100%. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी भी वे में अपनी चीज प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर मेरे से फेल भी हो गया, मेरे साथ ऐसा भी, मेरे क्लाइंट ने बोला कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होती देने में, बिकॉज आई थिंक कि उसके बाद हर प्रोजेक्ट के बाद या हर किसी भी न्यू चीज के बाद मैं एक डिफरेंट वर्जन ही होती हूँ अपने आप का. मतलब कुछ तो सीख ही लेता है बंदा यार. इसके सारे चक्रास खुले हुए हैं. हाँ भाई, I was like मैं तो She is सब coming में from a मैं place सोचती of बस. she is coming from a place of abundance. Like Yeah. I tend to connect with you. That on word this. is so familiar because he actually preaches that to हाँ, me. you do. Life has taught me. Yeah. Yeah, I mean, life has taught me that too. You Yeah. know, you should come from a place of abundance. Not everything should be calculated, and you know, मतलब Exactly. That is the recipe to lose. मतलब अगर आप Yes, for sure. अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये चीज़ ऐसे करूँ वैसे करूँ, इसमें जीतना है, इसमें काटना है, इसमें बचाना है, सो अगर सोचो हवा भी ऐसे सोचे तो क्या पता कल आपको सांस आए ना आए, है ना. सबको मिल रही है ना अपने हिस्से की. वाह. Wow. पॉडकास्ट Preachings वर्दी by- है. Philosopher and a fitness influencer. Clip of the day. also okay. So let's talk about ICN and how this guy Yeah. has won it like 5 times. Yeah. And let's hear it from your mouth. What Well, so exactly tell is us that? ICN exactly. होता क्या है? So basically ICN stands for I Compete Natural. It is the biggest federation in the world जो कि ऑथेंटिक तरीके से आपका ड्रग टेस्ट करके आपको आगे प्लेटफॉर्म देते हैं एक अपने आप को पोर्ट्रे करने का. एंड एक हॉल ऑफ फेम भी है उनका, wherein if the drug gets detected in your blood test, they actually publicize it and humiliate you. Okay. Wow, And that's- it's So that's so good. yeah. So because you cannot Next fool. question हमारा वैसे वैसे वही था. तो that interested me. मैं भी ऐसे fascinate हुआ था. And I got a lot of
so like people were accusing me of using steroids because I lost 37 kgs और मैंने अपने जब We were just gonna ask you, have you ever tried? no Have never you- I wanted to honestly because everyone Everybody wants wants I to think यार. सबका एक बार point तो सब पे- सोचते हैं. At least if you are at that pedestal and at that where you have actually monetized this thing and you are like भाई अब तो my let's put This it is your way, life now, this you is know? your life, this is your lifestyle and of course body देख के तो बंदा एक काफी सारे clients होते हैं भाई इसकी body अच्छी है तो हमारी भी Yeah. अच्छी ही होगी. Yeah. You're selling your body in a way. yeah but coach बनने से मैं कितना शरीफ हूँ ना मैंने समझा भी नहीं सो दे बेसिकली हैव हॉल ऑफ शेम जहाँ पे वो पब्लिसाइज करते हैं उन लोगों को जिनके ड्रग्स डिटेक्ट होते हैं एंड दे ह्यूमिलिएट देम That is पब्लिकली very nice actually. Good So- way to go about it. सो हुआ क्या कि जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी में 107 किलो का था आई लॉस्ट 37 kgs आई गॉट श्रेडेड बट दिस इट्स बैक इन 2018 1 year before I started my business Okay. तो देन आई ऑब्वियसली गॉट अ लॉट ऑफ थॉट्स कि यार ऑक्जेंड्रोलोन नाम का एक ड्रग है वो लेते हैं डायनाबॉल एंड डेकाड्यूराबोलोन बहुत सारे लाइक स्टैक एंड Is it very common? very common like It's every so every common. third It's so common. I mean, it's so common. It's like very common. I guess 1 out of every 10 people like people in the gym would be natural बाकी 9 जो है वो कर ही रहे होंगे चाहे वो दिख भी ना रहे हो because they're just influenced तो उस टाइम पे मुझे भी आया but then I was fortunate enough to have a mentor मेरे भी एक बड़े भाई हैं so his name is Gurneet Singh Dua and he's a CEO of FSSA wow. it's a certification Yes, I know. organization so he told me जैसे ही मैंने उनको कहा कि मुझे steroids लेने हैं तो वो मुझसे गुस्सा हो गया and he said I am stopping this guidance right now अब तू हाथ से निकल गया है तेरे को जो करना है कर and he did not talk to me for 30 days so that put me in a lot of introspection कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ then I skipped the idea और I delayed it and I started educating myself मैं दूसरे लोगों से बातें करता था जितना educate कर रहा था अपने आप को उतना ज़्यादा और डर रहा था उस चीज़ से Fair. देन मैंने 2 सर्टिफिकेशन ही कर ली कॉन्टेस्ट प्रेप सर्टिफिकेशन फिजिक एनहांसमेंट सर्टिफिकेशन Okay. उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया कि स्टेरॉइड्स के हाँ नहीं करना. so then I kept myself natural but then this ICN thing came up and it excited me then मैं सर्च वगैरह कर रहा था कि मैं किससे कोचिंग लूँ because I did not know anything about body building मैंने weight loss shredding वगैरह तो कर ली थी but then I needed to step on the stage और मेरी एक आदत है कि कुछ करना है तो स्ट्रक्चर में बढ़िया तरीके से करो और अच्छे से करके उसको फाड़ दो तो फिर मुझे पता चला जेक ब्रेली के बारे में ही इज़ माई कोच सो ही इज़ फ्रॉम द यूके एंड जब मैंने उन्हें रीच आउट किया मुझे वाई कनेक्ट हुआ and I enrolled under him and within 6 months I was on the stage and within 2 days it was my first time उन 2 दिनों में ही मेरे 5 मेडल्स आ गए मैंने 5 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया and not just that I skipped 1 category so first you're a first timer and if you don't win anything then you become a novice and अगर आप फर्स्ट टाइमर में कुछ जीत जाते हो तो आप सीधा एमेच्योर कैटेगरी में चले जाते हो तो उन 5 कैटेगरीज में जिनमें लोगों को 5 सीजन्स लग जाते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही कैटेगरी में पार्ट लेते हैं सो नाउ आई एम एन एमेच्योर इन ऑल दोस 5 कैटेगरीज That's great. so that's the story without about being a ICN novice. yeah That's amazing. That's amazing, man. yeah so that's about ICN Okay. And what about you? Are you interested in ICN as well? Like, is So- this something that interests you? When I went to witness his competition, मतलब I saw like कि मतलब more than just body building, something is inside him like कुछ और nurture हो गया भैया के अंदर on his prep. Like I saw it, the light that he had and how zen he was. जो आखिरी के कुछ दिन थे उस पे और उस टाइम मतलब ऑब्वियसली मैं लूज कर चुकी थी थोड़ा वेट बट देन आई वाज लाइक कि आई वांट टू फील व्हाट ही इज फीलिंग आई वाज नॉट मैं उसके पीछे नहीं थी कि मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है आई जस्ट वांट टू फील हाउ काम ही वाज कि वो अबंडेंस एटीट्यूड में ये थे सो व्हेन वी केम बैक फ्रॉम द कंपटीशन एंड आई सॉ कि भाई जब ये जीते तो मतलब ऐसे माइंड फक हो गया था सबका एंड सबका रिस्पेक्ट लेवल 100 जा She was चुका crying. Of course. मैं वीडियो बनवा रहा था वहाँ पे और ये रो रही थी मैं हर इनको 5 मिनट मैंने 5 मिनट के बाद मेरे को रोना आ रहा था यार, कि हाँ यार। वाओ एंड व्हेन ही वाज ऑन द स्टेज और मतलब आई थिंक स्टेज पे कुछ दिखता भी नहीं है ना कोई सामने हो तो मतलब वो फीलिंग मेरे को ऐसा लगा कि कितनी अच्छी होगी यार ये मतलब और इतना मतलब प्यार और रिस्पेक्ट साथ में बढ़ रहा था भैया के लिए देन आई थॉट कि मतलब ऐसा ये सब फील करने You को would want to also be there. एनीबॉडी कैन डू दिस मतलब कोई भी कर सकता है ना ये तो मैंने भैया को ऐसे ही बोला यार भैया मेरे को बहुत भी बहुत तो it was क्रेप हो after गया you came back that you were like I I'm full didn't- मैंने प्रेप नहीं बोला मैंने बोला बिकॉज मेरे को लगा यार मैं थोड़ी प्रेप कर सकती हूँ तो मैंने बोला मेरे को बस पतला होना है मेरे को अच्छे लाइफस्टाइल में जीना है भैया कहते प्रेप कर ले
हाँ मतलब it's अच्छा like you हाँ, have अब the as guidance. you said करना ही है तो फिर एकदम मतलब उनका एटीट्यूड ही नहीं है कि कोई ये नहीं कर सकता, ही वाज लाइक कर ले। अब मेरे को लगा यार ये इतनी इजीली कह रहे हैं तो ठीक कर है। लेती हूँ। हम भी कर लेते हैं ऐसा। Yeah, like jokes apart, I would encourage everyone to go through a prep once. हाँ सारी पेन खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ की. मतलब हाँ लाइक Let's do it. व्हाट New goal for the Hasavi and I next are month. always up for new Yeah. things. 9 weeks into the prep मेरे को already feel होने लग गया what he was feeling and I'm so glad I Okay, started it's been this. 9 months already. 9 weeks. 9 9 weeks. Yeah, within 9 weeks 10 kgs already down. Wow. And उससे पहले ही 25 kgs lose कर लिए थे, total of 35 kgs lost. That's And another 15 kgs to go. Yeah. Whoa. what has that's been amazing, the huh? hardest part of your prep वैसे मतलब in the 9 weeks? So being a fat kid, my attachment with food is like on 1 to 100 में 100 scale पे 100 पे है। तो अभी भी मेरे को यही इशू आता है कि मतलब मैंने कर लिया डिटैच अपने आप को व्हाट भैया सेट की अपनी मतलब यही मेमोरीज होती है ना कि बचपन में सैड होते थे तो खाना खा लिया था और कुछ और कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं था, तो अब वो नहीं समझ आता कि कैसे हो, बट ठीक है वी आर गेटिंग दिस, दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, लाइक टू कंट्रोल क्रेविंग्स, टू कंट्रोल फूड। So how have you detached? Like what worked for you? Actually, it's as easy as being on a structure and being consistent with the structure. मतलब बहुत ही cliche sound करता है ये, but यही राज है। Is this your dopamine achieving system? Like जैसे खाना खाते हैं तो एकदम से हाँ। dopamine hit मिलता है. Like yesterday Quick only, gratification, yesterday I was editing something and मेरे से नहीं हो रहा था, like we spent 4 hours on the edit and नहीं हो रहा, और मेरा सबसे पहला thought था काश मैं अभी कुछ खा सकती, then I would escape from the situation. मेरे साथ भी यही होता है, Like चीनी मैं- खाने का मन कर जाता है जब भी सैड लग रहा होता है। चीनी कौन खाता है? चीनी आते मीठा, like sugar craving. ओह अच्छा अच्छा। जज कौन करता है ऐसा? मतलब मीठा हाँ। Yeah. Like when sugar fats craving and हो sugar जाती come है यार, together. like that's उसको लगा आप टेबल शुगर खाना शुरू कर दो. जाके किचन में मेरे को नहीं लगा चीनी बट हाँ मीठा, हाँ समझ गई। तो भाई हार्डेस्ट पार्ट तो वही है मेरा अभी तक। तो अभी अब ऑनेस्टली बताना सच में डोपामिन हिट कहाँ से मिलता है, मैं सच में जानना चाहती हूँ। जैसे क्योंकि चाहिए तो होता मैं है। चाहिए बताती तो हूँ। होता है हाँ, यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन है. बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये अपने लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइक शी सेड मैं नहीं है। चीनी बहुत खाती हूँ। शायद I- ऐसी चीनी भी मैं एक्चुअली कभी कभी चीनी भी ऐसे मतलब आई एम समबडी हु अगर जैसे सपोज आई एम हैविंग अ बैड डे और मैं बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ अपनी औकात के Shreya बाहर, can eat a whole cake to herself. आई कैन, ठीक है, I can too. या मतलब आई कैन ईट 2 cakes. Wow. And she actually can. It's not. We're not Let's let's not ask Nikki. So मतलब it's very hard for me on days like I'm growing old, तो मतलब old नहीं, मतलब मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि भाई थोड़ा सा आराम से खाओ, मतलब there will come a time it will start showing on your face and everything. So now all these thoughts have started coming to my head and I'm like भाई कैसे करूँ मैं अपने आप को कंट्रोल, कि मतलब केक खाना है तो हफ्ते में एक बार ही खाना तो चाहिए, वो अपने लिए अब सोल्यूशन. हाँ मैं तो ये बताओ। सोल्यूशन मुझे आपसे ही चाहिए. यार मतलब देखो ऑब्वियसली लाइक मैं ये नहीं कह रही केक खाना बुरा है, course, मैं you बस are ये कह रही हूँ कि सिर्फ केक खाना बुरा है। मतलब कि मैंने क्या करा अपने लिए कि अब जैसे अभी मेरा मन कर रहा है बर्गर खाने का, तो मैंने अपने अपने माइंड को ये नहीं बोला कि यार नहीं खाना बर्गर, मैंने बोला अभी नहीं खाना। So what I do is I Delayed. हाँ I delayed gratification. But बाद में जैसे मैं कहूँगी अपने आप को यार वर्कआउट के बाद खाते हैं, चलो वर्कआउट के बाद हाँ अभी नहा के खाती हूँ, नहा के कुछ ऑर्डर करती हूँ, बट तब तक क्रेविंग चली जाती है बिकॉज जो मेरे को डोपामीन एंडोर्फिन वो सब चाहिए होता है वो मेरे को और चीज़ों से मिल चुका होता है, बट हमारा ब्रेन Immediate. एकदम मतलब इमीडिएट gratification. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेज कर रहा होता है, बट उसको बस ट्रिक कर करके डिले ही करती हूँ मैं तो। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टिल फिगरिंग एवरीथिंग आउट, आई एम मतलब मैं कोई हाँ What's your solution? Like, what do you tell your clients? So she hit the nail on its head. See, हर खुजली को एड्रेस नहीं करना होता, so craving is also like an itch only. Yeah. तो अगर आप उसी टाइम उसको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दोगे तो उसी टाइम आपका क्रैश भी हो जाएगा. Like what after that? You will feel good obviously for 1 to 2 hours, but after 2 hours you will also feel bad. Why did I do it? So at least like impulsive decisions नहीं लेने हमने सोचे समझे decisions लेने हैं. मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको रात को भी क्रेविंग हो रही होगी ना, कॉन्स्टेंटली पूरे दिन क्रेविंग हो रही है, सो इट यू शुड नॉट सैबोटेज योरसेल्फ इफ यू आर नॉट ऑन अ प्रेप, क्योंकि प्रेप से पहले भी इसका एक ट्रांजिशन इनटू प्रेप वाला जोन था. सो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी, लाइक अ प्रेप इज नॉट नेसेसरी, बट व्हेन यू आर ऑन अ प्रेप यू शुड बी रेडी फॉर इट. अगर आप प्रेप पे नहीं हो, यू कैन बी एब्सोल्युटली हेल्दी and you can be absolutely lean, muscular, being on a flexible dieting protocol, which I promote.
which I am on right now because I'm not on a prep, which is sustainable, which is sustainable. तो अगर आपको रात तक वो craving हो रही है तो आप किस why को चेज कर रहे हो, वो केक ना खा लो ना. हाँ मतलब that's how I live to be honest. मतलब 10 दिन में एक केक तो मैं खाती हूँ. हाँ तो नहीं ये तो बहुत ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड हो गया. हाँ नहीं Every week. हाँ यार 10 दिन में एक बार तो अगर मैं केक ना खाऊं तो फिर मुझे ऐसा लगता है बाकी चीजें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी. फिर मेरा जीने का क्या पॉइंट है, मुझे मर जाना चाहिए इससे अच्छा. हाँ ऑब्वियसली. तो अब नव्या की भी जो जर्नी है, नव्या ऑल्सो हैज अ चीट डे इन हर प्रेप. Once in a week she delays everything because right now she has something to look forward to. that one meal. Once a week. It was not once a week initially. It was every day when she was fat. Yeah. Slowly she built this. Yeah. And in the last 2 months she will probably have no cheat meals. But for only 2 months. वरना मैं भी अपने प्रेप में एंड के 2 महीने जब बचे होते हैं तब तक मैं एक चीट डे रखता हूँ अपना, जहाँ पे मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ. बिकॉज I saw this in a podcast. You don't eat food for that high. You eat food for fuel. यार नहीं यार, नहीं, that's नहीं not, यार, please ऐसा come नहीं on, हो let's सकता. not idealize such stupid Yeah, things. I mean, that's look at another how aggressive we are. narcissist statement because there's a lot of dogma actually on the internet कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए because that's easy to process, no. But मैं कह रहा हूँ stay in the gray area. You're absolutely doing everything right to yourself. And also you're a doctor, तो आप जो कहोगे सही होगा ना. नहीं ऐसा भी नहीं है. But yeah. Nobody's actually right. मतलब before this prep also I lost 25 kgs like he said. तो वो तो मैंने बहुत ही easily रोज कुछ ना कुछ रोज ब्रेड खा के सैंडविचेस खा के हो गया था वो, just because I was moving more. मतलब I was a healthy individual. But prep पे मैं सीधा ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ पूरे दिन, हम सीधा prep करने लग गए, ऐसा नहीं हुआ है. धीरे-धीरे. Of course you I cannot. prepped myself for the prep also. Yeah, and have to, I guess. but not to skip acknowledging her or people like her and all the athletes कि अगर आपको सपोज अगर शी हैज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि अगर कल इसका वेडनेसडे को चीट डे होता है बट वो 6 दिन में शी इज इन नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस जोन कि मन करेगा तो डिले करना ही है, जो मर्जी हो जाए. देयर इज नो अदर ऑप्शन. Discipline, देखो discipline तो is very important in life, right? If you want to achieve a certain goal, discipline has to be there. Over Otherwise anything, तो, I think. For anything, whatever. To add to it, हाँ ये important है, but एक और चीज कि बहुत लोग से ये नहीं होता है, लाइक 6 दिन नहीं ऑर्डर ले और एक दिन फकअप हो गया, दूसरे दिन फकअप हो गया, सो दे गिव अप कंप्लीटली. Yeah. ये नहीं बट होना आई वुड चाहिए, एडवाइस I कि ह्यूमंस हैं सब, हाँ यार, it's भैया से भी फकअप्स हुए हैं, मुझसे भी होते हैं, सबसे होते हैं सबसे यार. होता है और यार. इट इज. बट मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, सी एक्नॉलेजमेंट एथलीट्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ना अवेयर होना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी यू डोंट हैव टू गेट दिस फॉल्स सिग्नल फ्रॉम पीपल लाइक अस कि ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा काम करे. नहीं, हम सिर्फ ज्यादा अवेयर हैं कि अगर हमें क्रेविंग हो रही है तो कैसे? तो क्या हमें चीनी की क्रेविंग हो रही है, क्या हमें नमक की क्रेविंग हो रही है, क्या हमें उस कोकोआ पाउडर की क्रेविंग हो रही है कि चॉकलेट अगर आपको. सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे केक की क्रेविंग मुझे रोज होती है, सो मैंने अपने लिए एक बढ़िया तरीका निकाल लिया कि मैं ओट्स लेता हूँ, उसके अंदर अपना फ्लेवर, प्रोटीन, कोकोआ पाउडर, I एवरीथिंग saw this on your story. है ना. तो अब मुझे एक्चुअली में क्रेविंग हो रही थी मीठे की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, कोकोआ पाउडर की. तो मैंने उसका एक आइडेंटिकल वर्जन बना लिया एंड मेरी क्रेविंग चली गई एंड आई डोंट नीड And now दैट you can केक राइट include नाउ. that in your So you should ask yourself, do you need that high from sugar plus fat का combination? If that's the case, आपकी डाइट में देखो कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पे शुगर है, क्या आप उन दोनों सोर्सेज को कंबाइन कर सकते हो? Make that and eat that. And don't fall for prey of your own cravings when you don't even know But कि I आपको वो don't खाना ask चाहिए. personally, मुझे हर रोज बहुत तगड़ी कैफीन की क्रेविंग हो ही जाती है कॉफी की, मतलब कि कैफीन की होती है कि कैफीन प्लस शुगर की होती है? sugar I don't take in my coffee, so I don't think it could be. So have you tried Maybe Americano? milk, maybe I don't drink black coffee, I cannot. So it's milk plus coffee. But I want to ask you what is bad in that? पता नहीं यार, I think having a habit की मतलब 3 बजते की can't function without coffee वाला वो, that I think that is a bad. Having any habit like that, I think. That is brings me probably to a- another question to you कि आपको aware होना चाहिए यहाँ पे कि is your sleep well, like how did you sleep the last night, or It's is your day, regardless, मतलब it's regardless if I've slept well or not slept well. so then is your life right now demanding like the structure of your day? You're doing something creative, no? So अगर आप बेड पे नहीं बैठे हुए, नहीं, so if you're actually doing stuff, so allow yourself to get that caffeine rush, because then you should also know that safe limit. If you are under 300 mg of caffeine, I don't know your body weight, but 3 times your body weight. If you are under that, probably 180 to 200 mg होगा आपके लिए. So it's okay. So 1 cup of coffee is probably 65 to 70 mg. So 3 cups of coffee a day is fine. Okay, so now I want to steer the this conversation towards
body positivity. What is your stance on, you know, How body? would you define body positivity? Yeah, for you as a woman, what is body positivity? I would define body positivity like as simple as the term sounds, like being happy where you are right now with your body. Like if I'm working out, I'm not working out because oh my god I hate how I look. I'm working out because oh wow I can move my body like that. So I think being positive about your body, like it's fine, चल रहा है फिर रहा है, क्या problem है, मतलब हाँ ठीक है चला जाएगा जो भी है. Okay. So that's what body positivity is. And for you, Ivan? So for me, it's the therapeutic benefits that I get from working out, the reason I work out. But body positivity is actually Some people Like an definition excuse. from It's you. an Yeah, some excuse. people have See, really- I'm very sorry for being insensitive, but body positivity is misunderstood. yes, I would that's say. what I want to Body address. positivity is not that if you're fat, so you would ignore that, or you're unhealthily obese, Yes. or you're facing problems in moving or digesting stuff, so you're like, I'm body positive. Body positive is that if you know that you're healthy, if you know your non-negotiables are sorted, you're living a healthy life, and even then you're living an imposter, and you're seeing yourself in the mirror like, I'm not good enough, then that's body positivity कि वहाँ पे practice करो, अपने आप को बोलो भाई मैं एकदम सही हूँ, healthy हूँ, मेरे जो basic parameters वो सही हैं, पुर्जे उर्जे सही चल रहे हैं, तो मेरे को किसी के जैसा दिखना गलत होगा. That is body positivity. But people make this excuse कि वो आएंगे रील बनाएंगे, especially the girls. So especially please let's We'll just address it. put I think we all have very different opinions. I can see हम सब चारों के काफी opinions अलग हैं नहीं यहाँ नहीं पे. So मैं let's- बस यही बोल रही हूँ कि बॉडी पॉजिटिविटी सिर्फ फैट लोगों के लिए नहीं है टर्म. Yeah. Yeah, Body yeah. positivity is a human Yeah. term. I also feel like it's a very misunderstood term in the sense that, as you said very correctly that it's about loving your body as it is. But Right I now. would like to add that that's not where the definition ends. It's loving your body as it is right now enough to work on it and make it healthy. Yes. Yes, I yes. think that's also, a also I complete- hate, see, I'll tell you what I hate about the term body positivity, because some people are using it as an excuse Right, that's a to different not thing. take care of themselves. So Yeah. that's what I have a problem That's with. called delusion. Have you ever personally thought of like doing some surgery or any procedure? My dad gave me a great advice कि तू 25 साल का हो जा, उसके बाद देख लियो, जब तेरा मन हो तो अब करा लेंगे, पर 25 साल का मैच्योर हो जा. So 25 साल की एज तक I got transformed. I still have loose skin but I don't care anymore. So that is why I just said what I said कि एक बारी transform हो जाओ, उसके बाद आप aware हो जाओगे, then you might not even think of going for it. Even then if you want to go for it then. It's just that you should have mental clarity. I also feel that this is a really great thing that your father said, because by the time I think you hit 25, 26, तुम्हारा Perspective दिमाग- on life थोड़ा change हो जाता एंड है. आई थिंक इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन लाइफ, तुम्हारा वैसे ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो ये थोड़ी बहुत imperfections होती है वो मुझे ऐसा लगता है कि मैटर करनी बंद कर जाती है ना. कम हो जाती है. Exactly. भाई delayed या डिलेड ग्रेटिफिकेशन भाई हर जगह काम होता है. Like I have this problem. I have a lot of problem with my nose. I used to. ठीक है, तो my dad told me if you want to get your rhinoplasty done, do it once you hit 25, 26. Okay. By 25, 26, I was so comfortable with my nose that I was like, you know what, it's okay. fine. I want to. had like other things to worry about. Not even Not just that. that, you just get comfortable in your skin In your because you feel skin. confident now. Yeah. इतना validation. No, करना- what she means is that you have bigger things to focus on, like this podcast, no? So you have bigger things to focus on in life. So you get a lot of time with yourself by the Yeah, time. you get so comfortable living your life that you're like कि this really is not that It's- big of a deal. Yeah, like fuck it man, थोड़ी बहुत imperfections है भी तो. हाँ it's पर okay. just don't tell yourself कि मैं कभी भी नहीं कराऊंगी, just set yourself free. मनुआ करा लूंगी. नहीं वो बोलती है. मैं कभी कभी बोलती हूँ, I have my days where I'm like, you know what, I think I should get it done, and these guys are like Sahil also, my husband also says कि हाँ तेरा मन है तो करा ले, but वैसे like Sahil will always be like कि वैसे ऐसे जरूरत नहीं है, हाँ but we tell her कि कोई जरूरत But नहीं that is the best response they can give. Yeah. But अगर वो बोलेगा ना नहीं मत करा दे, your brain will think why not? No, we're open to like क्या वो कराने कराओ, हमें नहीं लगता कि आपको कोई जरूरत है. But if you want to do it, घर की क्लिनिक है यार कराओ, घर की क्लिनिक है, जब मर्जी करा लो. Just imagine like हाँ किचन की तरह है no. कि जाना है करा के आ जाओ. हाँ कोई नहीं. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक माई फादर इन लॉ फादर इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, तो हमारा जब मन करे हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा सकते हैं, बट हमने आज तक कुछ अभी तक कराया ही इसलिए नहीं शायद है. चुल कम है हमें. शायद क्योंकि इसलिए भी हमारे हमारी सामने चुल होता कम रहता है है. तो हमें तो चुल नहीं होती कि हमें कराना है नहीं. हाँ. ये वो वाली बात हो गई ना, think of a yellow, don't think of a नहीं, yellow ये teddy कटवाना bear, पड़ेगा, and then you पापा think की of one. Yeah, human नहीं reactants. यार पापा आधे टाइम लोगों को लड़कियां आती हैं, ठीक है, I'll tell you पता a है friend खुद ही of मना mine, कर देते हैं. a friend of mine, she was like I want a filler and पापा कह रहे क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, और हम ऐसे हो रहे ऐसे. क्लाइंट भेजा है आपने, उन्होंने उसको पूरी तरीके से मना डाला कि बेटा तुम्हें वो कोई काउंसलिंग जरूरत करके नहीं है. भेज देते हैं कि
why do you want to do it? He's probably the best doctor. Yeah. He is the best doctor ever. Like sometimes we crave about it कि अरे यार client हो जाता इन्होंने फिर वापस भेज दिया. But again, to come back to the conversation, I want to talk about जैसे सबका I think लड़कियों का especially अलग अलग होता है. Like for me example, if I'm on my periods, I feel like I want to work out. It helps me with my cramps, my mood and whatever. But then I have friends who just want to be on their bed. They don't want to move. करवट भी नहीं लेनी है भाई उन्हें. I am that friend. Yeah, I'm So also how that do you person. now that you're prepping, how do you deal with like those days? Cravings भी बहुत होती हैं. सब कुछ ही बढ़ जाता है. Intensify, you know. यार cravings ज़्यादा है, discomfort. But हाँ भाई, one thing that I discovered after I started my prep was मुझे ऐसा लगता था कि मैं workout नहीं कर सकती periods पे. But जब मैंने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिया Mental कोई, block होता है वो बहुत लोगों के लिए. हाँ, Yes, for sure. नहीं डेफिनेटली पेन वगैरह होता है मुझे, बट मतलब जैसे पहला दिन जब मेरा प्रेप था, दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ माय पीरियड, तो वो लगा नहीं आज तो मैं मिस नहीं कर सकती. एंड आई डिड माय लेग्स ऑन दैट एंड आई रियलाइज्ड कि मतलब आई कैन डू मोर देन मोस्टली बिकॉज आई थिंक सोसाइटी में एक तो Very, इंस्टाग्राम I में दिमाग really- खराब कर दिया था yes. कि पीरियड्स पे यू शुड रेस्ट एंड यू डिजर्व, यू बर्न मोर कैलोरीज. यू डेफिनेटली डू, बट एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए वो. Yeah, बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरे को सीरियस मतलब ऑफ कोर्स आई पुश माई सेल्फ, बट not at the cost of my body. मतलब I tell my coach कि this is how I'm feeling, what should I do, and मतलब obviously turn to your coach. But if you don't have a coach, just listen to your body once. But ये कोई reason नहीं है कि मैं gym ही ना जाऊँ. Like if I'm feeling low, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो I'll just say कि ठीक है मैं walk ही कर लेती हूँ आज. फिर वो walk कब cardio बन जाए, cardio कब weight training session बन जाए, मुझे पता ही नहीं चलता है. Like, as a physician, I would really like to point it out. उतना करो जितना तुम्हारी बॉडी ले सकती है. हाँ. यार पता नहीं चलता ना बस कि that's about it. how do you get to know पता this? चल जाता है. तो चलता है यार. अपनी Yeah, body I से- feel like मेरे को नहीं चलता. You've seen me at my place. I go and मुझे अगले दिन फिर बुखार हो जाता है क्योंकि मैं फालतू में जिम चली गई थी जब मुझे शायद रुक जाना चाहिए था घर Like पे. I personally, first and second day of my period, I cannot work out, and I'm someone who doesn't like to give myself excuses. I have tried it, but ऐसे एक दो बार हुआ है कि मुझे थोड़ा चक्कर आ गया, and that's what at that time I was like, why my body is telling me कि bro no, हाँ. go home. So first and second day of my period, I don't like to work out, but again this is not applicable to every woman out Yeah. there. Listen to your body. So we know there are so many n number of diets that exist: intermittent fasting, keto, plana dimana. What's your take on this? Do you recommend people to have those diets? I would recommend you to do whatever you want to in a calculated manner. Yeah. So even if you do intermittent fasting, you should know your capacity to fast. Even if you do keto, you should know कि आप वो क्यों कर रहे हो कि आपके आसपास carbohydrates available नहीं है, which is actually not the case. So according to me, there is only one diet that is pointless, even in clinical cases, which is ketogenic diet. In fact, it would do more harm than benefit you. 100% So intermittent fasting is great. क्योंकि वो पर्सनली मैं भी करता हूँ, नहीं क्योंकि वो मैं पर्सनली करता हूँ इसलिए नहीं, बट वो मैं इसलिए ही करता हूँ बिकॉज वो उसके एविडेंस भी हैं दैट जस्ट फॉर 12 to 13 hours everyone should fast. Yeah. It would also help you with your digestion कि सुबह उठते ही your cortisol awakening response, she's a doctor, you might understand this. तो होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम जग रहे होते हैं, तो अभी हम ग्रॉगी हैं, तो उसका मतलब है हमारा एडिनोसाइन क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो हमारा कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स उस एडिनोसाइन क्लियरेंस को हटाता है, लाइक करता है स्टिमुलेट, तो एडिनोसाइन को दिमाग से हटाता है और आप धीरे धीरे जग रहे होते हो. सो कॉफ़ी हेल्प्स यू, कैफीन हेल्प्स यू विद दैट, एंड एडिनोसाइन रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक होते हैं, तो कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स इज एनहांस्ड बाय कैफीन. बट अगर आप वहाँ पे उठते ही सुबह खाना खा लो, उठते ही आपने वेट भी नहीं किया कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स का, सो यू विल प्रोबेबली स्टे ग्रॉगी. बट दिस इज अगेन इंडिविजुअल स्पेसिफिक. अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सुबह उठते ही भूख लगती है और उसके बाद आप फास्ट कर रहे हो, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बिजी हो जाते हैं और फिर वो शाम के 5 बजे खाते हैं सुबह 8 बजे के बाद. सो अगेन दैट इज ऑल्सो फास्टिंग. सो फास्टिंग हैज डिफरेंट टाइप्स, चूज योर्स. Choose what works So for you. And go body for to body depend करता है ये. हाँ, बट इससे वेट लॉस फैट लॉस का कोई लेना देना नहीं है कुछ जो ऐसा भी जिसके होता है लिए. कि if you do intermittent fasting for a very long time, like 2-3 months, then is that more harmful than See, intermittent beneficial? fasting is a eating pattern. It is not a eating diet. pattern. Yeah, yeah. So for as long as you do it, चाहे आप एक दिन करो चाहे एक साल करो, बॉडी पे वही इफेक्ट पड़ेगा. What you are asking is कि उससे क्या बॉडी अंदर से रिपेयर हो कि कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगी. That's clearly not the case because वो सेल्यूलर लेवल पे होता है and that is negligible. तो अगर आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल सही है, आप मेंटेनेंस पे खा Like रहे I say, हो, most people I think do intermittent for weight loss. it's false. Because Like, for because weight loss, लोग तो वही सोच के करते हैं ना. हाँ, so for weight loss, even if you're eating 5 meals, but you end up in a deficit, you will still lose weight. So it's not necessary. अब मैं एक मील अ डे खा लूँ, मैंने कर रखी है ये 23 घंटे वाली फास्टिंग भी, मैंने सब कर रखा है.
तो उससे आई गॉट IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बिकॉज HCl मेरा अंदर स्टमक एसिड रिलीज हो जा रहे मैं उसको दे नहीं रहा, तो और एक बारी में मैंने कहा चलो अब पिज्जा बर्गर खाते हैं, सारा जंक फूड खाया, डायरिया ऑफ कोर्स वो तो होता ही है। एंड सरप्लस वेट गेन ऑन एन इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली यहाँ पे मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा दैट यू गाइज डोंट हैव टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी, सो इट्स नॉट दैट वी आर सुपीरियर टू यू और व्हाट, बट इट्स जस्ट हाउ वी आर डिजाइंड। तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन उससे लड़ सकता है। तो हमारे अंदर अगर कॉर्टिसोल बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 48 आवर फास्ट पे जाता हूँ, तो मुझे टेस्टोस्टेरोन है फंक्शन करवाने के लिए, मेरे एड्रेनलिन को स्टिमुलेट करने के लिए, टू गेट शिट डन। बट वहीं पे एक फीमेल के पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो प्रोबेबली योर बॉडी इज फाइटिंग बैक मोर, सो इट्स गोना negatively impact obviously if we compare both of the cases in a prolonged fasting period। 12-13 घंटे फास्टिंग यूनिवर्सली हर कोई कर सकता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पर अगर यहाँ पे बात आती है 48-72 आवर फास्ट की, वो कोई करता ही नहीं है। Now that we're talking about it, because my mother and also me at some level we're very into natural therapy। अब natural therapy में उनका most diseases का solution ही होता है कि you fast। Yes। You fast as much as you can, and I have personally done a 72-hour fast, and it took the life out of me, I think. Man, like, okay, figuratively and like literally. first day was just water, then second day was I think just vegetable juices, and third day a little bit of fruits. I think that's how it went. Oh, but that's not fasting। हाँ मतलब whatever, I don't know what you call it, but उनके वहाँ पे वो fasting। No, so fasting is literally no food। No food at all। Okay, it's 24-hour fast, and then they Yeah। shift to a liquid diet, and then Yeah। gradually by the end night turn into. I'm not personally not a fan of this। Yeah, but Personally I not a have fan of tried this। a lot of this. So, what is your opinion on all these things? I would say see fasting science support करती है इस चीज़ को। fasting can literally work on your cancer like Detoxify। हाँ, but because जब आप खाना खाते हो तो AMP के सिग्नलिंग होती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी एजिंग जो है वो होती है। so if you don't eat only then you would probably slow down aging। so कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन ही एजिंग है, बिकॉज कैंसर ने एक तरह से एजिंग आपकी फास्ट कर दी। so to anti age that with the medicines, if you fast it would still just benefit you पता नहीं यार, I 1%। like बहुत एक्सट्रीम करा देते हैं वहाँ पे, like I have heard जो आप कह रहे हो ना, 10-12 days चल रही है उनकी लेट मी fasting। एक्सप्लेन, जो आप कह रहे हो वो डाइजेशन के लिए, एंड डिटॉक्स आयुर्वेदा में जो तामसिक योग है उसको कम करने के लिए होता है, correct। कि बेसिकली मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव एग्रेसिव फील कर रहा हूँ और मेरा डाइजेशन भी खराब है और मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सो आई वुड गेट मेंटल क्लैरिटी। सो फॉर मेंटल क्लैरिटी, But is it really like even does anybody should be doing a 12 days fast, like 12 days fast? but if it's this kind of fast which involves no, not this 12 days water fast, because वहाँ पे ऐसे लोग भी नहीं निकल नहीं गए नहीं थे। so starvation bro। Yeah, starvation। so I have had a No, client। because I saw it for the first time only when I went away with mama। Yeah, I have had a client, सायर है उसका नाम, उसका पॉडकास्ट भी लिया था, तो वो यही करता था, 10-12 दिन फास्टिंग करता था फॉर वेट लॉस। yeah। So he ended up losing all his muscle and he got digestive disorders। Used to be on water। Yeah, only water। And he used to get delusion and hallucinations also। Of course Yeah, of bro, course, you are because not yeah। giving glucose to your हाँ। brain only ना। तो But then people claim कि ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। it's just to promote an agenda। आप मुझे 1 लाख रुपए अभी दो और मुझे बोलो कि ये माइक पे पूरे दिन बोलने से ही हो जाता है, तो मैं कुछ भी बोल दूंगा ना, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल, नहीं नहीं मैं तो नहीं बोलूँ। ठीक है, क्या पता बोल भी दूं, है ना। बट जस्ट किडिंग, बट यही है कि टू प्रमोट एन एजेंडा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे भी ऐसे ही होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन पिच्ड मी फॉर दिस कि आर्टिफिशियल स्वीटनर को बुरा बोल दो, एंड वी विल पे यू 2.5 लाख रुपीज फॉर दिस रील। I did not accept that offer, but I accepted one offer which told me to promote the usage of artificial sweeteners as safe. So I introspected, but they only paid me 1.5 lakh rupees for that reel. But I introspected and I asked myself, is it correct what I'm promoting? I said yes. So I promoted that agenda that artificial sweeteners are safe. So are ऐसे they ही safe according to you? absolutely safe। Anything in moderation, I feel maybe। आप मॉडरेशन में ना भी करो तब भी वो सेफ है। So because if you're not intolerant, में आया था aspartame cancer again cherry picked। है ना। Also, all these research studies are all agenda based, right? At the end of the day। also That is why you should only read meta-analysis। प्रोटीन पाउडर्स आई पर्सनली मैं तो करती हूँ, मैं यूज करती हूँ। मेरे घर में ये बहुत ही हाई डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि our parents
are very against using any kind of protein. But And मैं और these साहिल are- तो हम तो like her and Bhai have always done it. I have very recently started consuming protein. So what's your take on See, that? initially I used to tell parents कि ये हो आप तो फिर ये करते हो वो भी गलत है ये वो, बट देन जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मैंने सोचा अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं भी यही करता, बिकॉज अगर सपोज मैं बड़ा हूँ और मेरा बच्चा मेरे पास आए कि ये एक सप्लीमेंट है इससे ये हो जाता है, मेरी कोई पास्ट मेमोरी नहीं उससे रिलेटेड, सो आउट ऑफ कंसर्न आई वुड से स्टे अवे Stay away. बिकॉज lack द of वर्ल्ड इज knowledge. बैड, Yeah. दैट इज वाई. बट रिसर्चेज हैं हमारे पास एंड अगर क्वालिटी सप्लीमेंट FDA अप्रूव्ड है. World is bad. Quality supplement. क्या पता कौन क्या बोल रहा है. As you said, the protein bread है. कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, it's probably a scam only. सो नहीं, तो यहाँ पे बात ये है कि प्रोटीन ब्रेड के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो ना. अगर FSSAI ने उसे लाइसेंस दिया है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कंज्यूमर कि उसमें पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है. आप प्रोटीन ब्रेड में पहला इंग्रेडिएंट देखोगे व्हीट फ्लावर होगा पहला इंग्रेडिएंट, वो भी 68%. तो अगर उसके अंदर मैं कहता हूँ अगर वे प्रोटीन है ना पहला इंग्रेडिएंट 78% वे प्रोटीन, खा लो. पर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ प्रोटीन से प्रोटीन ब्रेड बन जाए. सो दैट इज व्हाट आई सेड. बट इफ यू यूजिंग अ क्वालिटी सप्लीमेंट ब्रांड जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन है, थर्ड पार्टी टेस्टिंग हो रखी है, उन्होंने अपनी लैब में टेस्टिंग नहीं करी कि बाहर से किसी यूट्यूबर ने टेस्टिंग कर दी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी, एंड इट इज प्रूवन कि उसके अंदर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही है. तो अब प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की आप स्टडीज देखो एंड अच्छे डॉक्टर्स जो अपडेटेड है ना वो खुद recommend. हाँ, आप करोगे ना. बिल्कुल. शी इज अ लाइसेंस डॉक्टर ना. No, of course, and I have done my bit of research before I started this. Sahil and I sat and we were like कि हमारी खुद की मतलब डाइट में हमारा प्रोटीन नहीं है पूरा complete. And I am a non-vegetarian, but I married Sahil and these guys are all vegetarians. Now मेरा थोड़ा सा because मेरा non-veg भी कम हो गया और मेरे को नहीं मिल रहे पूरे मतलब sources, तो मैं खाती हूँ प्रोटीन. एंड फॉर फीमेल्स प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes, exactly. आफ्टर 30 फीमेल की बोन डेंसिटी ज्यादा रेट पे गिरती है देन मेल, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ नाउ अगेन टेस्टोस्टेरोन. Testosterone. Yes. सो एवरीबॉडी नीड्स, एंड ओल्डर फीमेल्स जिनको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का डर है उनको तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए. समझाना पड़ेगा भाई. अरे मैं ऑलरेडी डॉक्टर गूगल को मिलवा चुकी हूँ मम्मी से और उनको बता चुकी है. अब ये नव्या बैठी है आपके सामने, तो ये पहले लो प्रोटीन डाइट पे थी जब ये वेट लॉस कर रही थी. इसने लो प्रोटीन डाइट पे भी वेट लॉस किया है और जैसे ही हाई प्रोटीन डाइट पे इसकी बॉडी मैजिकली चेंज होना शुरू होगी एज इफ शी इज ऑन फैट बर्नर्स और स्टेरॉइड्स. That's true. सो लाइक तूने क्या डिफरेंस फील किया अपने अंदर हाई प्रोटीन डाइट पे? एक तो यार ये तो बहुत ऑब्वियस सा रीजन है कि प्रोटीन मेक्स यू फील फुलर आल्सो, तो लेस क्रेविंग्स एंड आई फील मोर एनर्जाइज्ड. मतलब Not just that, यूजुअली I think you don't lose out the muscle. Like मैंने भी की थी वो सात्विक डाइट. You remember? मेरा भाई लिटरली मुझे क्या बोलता था? भाई ये वो लगने लग गई थी जो मजदूर construction- बोलने लग गया था, हाँ, पता है मजदूर मेरे? लगने लगी थी. इतनी पतली पतली But बनाई now लेके I've घूम रही switched थी. to like I was like, ये क्या हाल बना लिया कंस्ट्रक्शन तू ये इमेजिन करने लग गई. यूजुअली कैरी डेफिसिट पे लेथार्जिक भी जाते हैं. Yeah, सो for sure. आई थिंक वे प्रोटीन ओनली हेल्प्स यू. और ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं पेरेंट्स वाले मैंने लकीली नहीं करे, yeah, because you have him. No. बट ही फेस देम. Of course. हाँ, There and is a sibling एक- always. तो इसलिए That's तो Yeah. तो मैं तो बचपन से कन्विंस्ड ही थी कि इट्स Yeah, सेफ yeah, it's ओनली safe. बिकॉज सही. मैंने तो लाइव एग्जांपल भी देखा कि हाउ इट डज, बट इट ट्रूली हेल्प्स. Yeah, yeah, it इट्स अ truly गेम helps. चेंज. I think course it so. is. I think let's do the rapid fire. Yeah, now we have Done. a really cool rapid fire for these two. Amazing. You wanna And explain? yeah, we'll give you a pen and paper and we'll ask you a question. You have to answer for your brother and you have to answer. You have to answer for like yourself also and for her also. Same for you. Make 2 columns on the page and just answer. Ekansh, Navya. Okay, let's just. वाओ. कितना जानता हूँ मैं तुझे. Sort of मतलब. लाइन बनानी है? आपकी मर्जी है. ठीक है, कितने क्यूट है. चलो. All right. First question is that how many cheat meals do you have in a day? You have to answer. अभी for day both. नहीं week. Week. Sorry. Week. In a week. Yeah. Answer for Ekansh and answer for yourself. And you also have to do the same. And थोड़ा सा छुपा के. ठीक हाँ, है please paper छुपा के. हाँ यार मेरे को इतना दूर दिखेगा. Done. Done? Okay. Is actually her coach, no? So he decides. Let's see if their Let's see answers if are their answer matching. matches. In a week ना. Yeah, हाँ, in a week, in a week. मुझे तो सब पता ही है इस बारे में, फिटनेस जर्नी के बारे में. Okay. So what protein powder does he use and what protein powder do you use? अच्छा, आप फ्री में प्रमोशन करा रहे हो मेरे ब्रांड की? अपने ब्रांड का नहीं लिखना एकांश. I'm really sorry, but अपने ब्रांड का नहीं तो लिखना. क्या लिखूं?
whatever use you तो वही think करते हैं is ना। नहीं whatever you आपने ये think पूछा ना हम क्या यूज कर is- रहे हाँ हैं? हाँ बट आप अपने ब्रांड का मत लिखो because then नहीं उनका नहीं है आपका अच्छा आपने 2-3 दिन नहीं फॉलो किया ना हाँ मैंने 2-3 दिन नहीं जो मैं That he's promoting, he said. Yeah, जो मैं yeah. यूज कर रहा हूँ मैं वही लिखूंगा ना। हाँ do we want that Yeah. पर मैं जो यूज ही नहीं कर रहा मैं वो लिखूंगा कैसे? no I meant that you like this but you're using something else like I also like 2-3 you know like I like My Protein I like Muscle Blaze We'll but do that for the next one. You don't like GNC? He's not allowed to say any other name. okay so who is your favorite female fitness influencer Male and influencers. your male ये तो मेरी रील भी वायरल गई थी। like me you can't And you write can't your write name. Navya. no हाँ। of course not भैया And you Male. can't read a can't. मेल ये मुश्किल क्वेश्चन है रोहित खत्री नहीं अरे मतलब फेवरेट नहीं नहीं है। कितनी जल्दी नहीं निकला था ना। फेवरेट नहीं है कह रहा हूँ यार। yeah this is the only part that I'm not going to cut in the podcast यार मैं तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो ही नहीं करती अरे तेरे अरे वो कौन है वो जो बनाती रहती है पूरे दिन? अच्छा क्या नाम है वो मेरे को रोहित लग खत्री की रहा है wife? साक्षी नहीं जिसकी वीडियो भी तूने एडिट करी थी। वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर थोड़ी है फैशन अरे तू मेरे को आंसर मत बताना मेरे को जो पता है मैं वही लिखूंगा ना। लिख दो चलो सबको आंसर पता है। और कुछ है नहीं उनको नहीं पता है भैया की क्या लिखना है एक फीमेल और एक मेल मतलब फीमेल फॉर हिम, मेल फॉर यू। या मेरी फीमेल हुई तो यार अपनी भी लिख दे चल लिख ले यार तू। खुश रहे यार मैं तो दोनों की फीमेल ही लिख दी। ठीक है। ओके, वन अनहेल्दी हैबिट। एक मिनट मैंने भैया का इन्फ्लुएंसर नहीं लिखी मुझे पता नहीं है उन्होंने हिंट तो दे दिया, नाम भी बोल ही दिया था कि वही नहीं लिख वो दिया वो मेरा बोल रहे थे वन अनहेल्दी हैबिट मेरी तो you है have and she has, हाँ। हाँ इसकी सोच रहा हाँ हूँ। क्या वन अनहेल्दी हैबिट ऑफ हिज थोड़ा और वो करो यार ये तो बहुत जनरलाइज्ड है कोई बात नहीं Unhealthy fitness habit। फिटनेस हैबिट की बात हो रही है वही कुछ तो। अबे घर में सब उसी का तो मजाक उड़ाते हैं मेरा। maybe She's he like, makes what? fun of other fitness influencers way too much She's like it's too obvious। फिटनेस हैबिट भैया की गलत कोई हाँ She's like मेरे भैया की हैबिट गलत है भाई. अच्छा नहीं मतलब मेरे आईज में नहीं है वही वही she's like मेरे भैया और गलत। मेरे भैया और गलत देखती मैं तो हूँ इनकी पूजा करती हूँ सच में नहीं सच में हाँ हाँ अच्छी बात है मेरी अपनी भी लिखनी तेरी लिख दी मैंने। नाइस मेरी है हाँ भैया is aware। Just to see only the okay now positive you need to Bro give chose your violence. papers। एक मिनट मुझे अपनी लिखनी है पूरी हाँ अपनी नहीं अपने भाई की लिखनी है अच्छा पढ़ा नहीं जाएगा. नहीं ब्रैकेट में लिख दो आई लव यू भैया नहीं मेरी हैंडराइटिंग इससे काफी गंदी है तो आई एम गुड। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स यार, मैं पापा की हैंडराइटिंग पढ़ी सो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या पूछा था हमने फर्स्ट? फर्स्ट ये Question ही भूल गए था मैंने। कि चीट मील हफ्ते में 3 to 4। हाँ क्या आपके हाँ ऑफ सीजन। मैंने तो एक लिखा है she doesn't she loves her Navya भैया one. way too much Yeah. मैंने भी एक ही Navya लिखा है सही सही आंसर मेरा। आपका एक लिखा है नहीं उसने आपका तूने मेरा एक लिखा है गलत हो गया यार। गलत हो गया ना भैया 1 point। प्रोटीन ब्रांड GNC। GNC दोनों दोनों GNC GNC का। GNC बहुत बढ़िया है चलो आई ट्राई दैट नाउ Explain बहुत it टाइम to हो गया बहुत टाइम से माय प्रोटीन फार्मेसी है डॉक्टर हो गार्जियन फार्मेसी। आई नो बट मेरे को अच्छा नहीं लगा कभी पता नहीं फॉर सम रीजन आज वो हेल्थ के लिए जो अच्छी चीजें होती है वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती क्योंकि नहीं वेलबीइंग अच्छा नहीं लगा ही कांट कैफे मोका खाना I'll send you a cake recipe that we made out of it. Oh. ठीक है cool प्लीज आई नीड दैट ओके नेक्स्ट Peanut butter। पीनट बटर पिंटोला पिंटोला दोनों ने पिंटोला लिखा है वाह यार मुझे याद है ओके मैं तो लाता हूँ peanut butter। नाउ फीमेल इन्फ्लुएंसर मुझे नहीं पता थी ये मैंने जो मुझे पता है वो लिखी है एकांश का रिया खत्री एकांश हैज रिया खत्री कौन है? ब्रो निकी कपूर। रिया खत्री कौन है? निकी कपूर यार ये तो चीटिंग है हाँ ये तो एंड नव्या का है तरन्नुम तरन्नुम एंड एकांश पर रिया खत्री कौन है? दिखाऊंगी पर मैं तो जानता ही नहीं उसको। ले अच्छा ठीक है छोड़ो मैं मेरी फेवरेट कैसे हो गई हो? मेरी फेवरेट में लिख दिया मैंने मुझे पता ही नहीं थी कोई और मेरा आंसर तो बता दो। बता दिया अरे मेरा आंसर मैंने जो अपने लिया। निकी कपूर बताया ना तो मैंने चीटिंग हो गई यार। Funny thing is I'm not a fitness. वही she तो। You are a fitness influencer. आई डिडंट थिंक आई हमें शुड बोल हैव देना चाहिए था कि नव्या एंड निकी बोल यार ये not रैपिड allowed। फायर था ना तो ये जल्दी जल्दी आंसर ठीक है। Okay, so one unhealthy habit of Ekansh that she has mentioned This is is so funny. being
Being what? Binging. Potty. Love it. क्या? ये फिटनेस कैसे? फिटनेस Unhealthy है भाई. Unhealthy है bro. भाई ये बहुत अनहेल्दी है पता और है. ये हम सब क्या 40 में ज्यादा बैठना? भाई नहीं बैठना चाहिए इतनी देर तक. एनल फिशर्स हो जाएंगे. यार मेरे को तो बिना ज्यादा बैठे फिशर तो to all the people who sit in their toilets way too long. इसने क्या लिखा है मेरा? बिंजिंग. बिंजिंग. और ब्रैकेट में लिखा आई लव यू भैया. यार कितनी क्यूट. डबल क्रॉस कर रही है तू मुझे. और फिर बिंजिंग के बाद लिखा है एक चीट मील. ये कैसे मतलब? क्या? बिंजिंग उनकी बैड हैबिट है, ये सबको पता है, वो चीज कंट्रोल्स. ये पता है सबको. हाँ मुझे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर था 2 साल पहले. मतलब इफ यू अगर इनको खुला छोड़ दो. हाँ सब कुछ करा है. एंड इसका बताओ जो मैंने लिखा है. मैंने जो लिखा है इसके लिए. Too hard life and no sleep. But ये तो bad habit थोड़ी ना. नहीं Bad वो habit दिस इज अ है. बैड हैबिट. elevated cortisol all the time. Elevated cortisol. अगर स्लीप अच्छे से नहीं लोगे, जैसे मैं तो हाँ, ये अच्छा आई एम kind of, समबडी हु लाइक्स टू स्लीप फॉर 9 hours. हम्म। ठीक है, मैं 9 घंटे से Perfect. मतलब मेरे को उतना मिलता नहीं है, पर ऑन अ गुड डे जब मैं ऐसे उठती हूँ, ओए होए मजे आ गए आज तो मुझे मैं 9-10 घंटे सो के उठती हूँ. ये बहुत Perfect अच्छी है वो बात यार. है. Being a female, you need more I sleep. तो get my 7 hours every day. Yeah. नहीं एवरी डे तो आया. मतलब obviously कभी-कभी बहुत हो जाता है rarely कि but I try to get. यार my मैं 7 ऐसे hours. 9 घंटे वाली हूँ और मेरे को बहुत टाइम 3 घंटे सो के जाना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो ऑफ जाता है. कोर्स दैट इज देयर. अब जैसे मेरा मतलब सपोज वीक में 3 शिफ्ट्स है, ठीक है, और सैटरडे संडे मेरे गिग्स आ गए आउट स्टेशन, तो वो वाला हफ्ता मेरा बहुत ही बेकार जाता है. और कि अभी तो यार- 24 आवर शिफ्ट होती है. हाँ मेरी 24 आवर शिफ्ट्स होती है. सो 24 आवर में सोते ही नहीं. नहीं हमें मतलब ऐसे टाइम Time मिलता मिल जाता है रात को, पर वो फोन कभी भी बच सकता है. ठीक है कि ओ इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, फिर मैं सोचती हूँ I वो would हो sign गया. a petition for females. Females should be set free very early in the day क्योंकि they need sleep. नहीं यार मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं ये 24 आवर शिफ्ट के चक्कर में. कोई पिटिशन मत साइन करना. हमारे प्रोफेशन ऐसे नहीं है यार. All right, so this was a really fun session. I think this has to be my favorite Yeah, it episode. was. till Oh, wow. now. Yeah, we had like this was such a free flowing conversation. And since we are also, I think we can call each other fitness enthusiasts. We really enjoyed the conversation. I Thank you. hope so did you guys. Yes, we did. And thank you so much for being part of Papi. And yes, you are Yeah. proudly Papi. Papi. Yeah, thank you for having us, guys. Yeah, thank you. But this was my first podcast Oh yes, ever. this is Navya's first Yeah, podcast. and I really had so much fun. और मतलब अब मुझे कोई बुलाएगा पॉडकास्ट के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर जाऊंगी. Yay. बुलाना शुरू कर दो. No, but thank you guys. This was great. Thank you welcome. so much. Thank you so much for coming. Bye. Bye. Bye, guys.